लाइव भारत स्पेशल। निगम की जांच शुरू, 30 दिन में देंगे रिजल्ट। एक्सियन व सेवादार के विवाद पर 30 दिनों में होगी जांच। सफाई सेवा यूनियन के प्रधान विनोद बिट्टा ने कहा, जांच निष्पक्ष न हुई तो सफाई सेवक करेंगे हड़ताल। लाइव भारत ने सबसे पहले उठाया था ये मुद्दा। देखें लाइव भारत की स्पेशल स्टोरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला और आज गए हैं नगर निगम और लेकर आए हैं मुद्दा वही 72 घंटे। तो लाइव भारत ने आपको दिखाया था, विस्तार से बताया था किस तरह 72 घंटे शहर और शहर के जो सफाई सेवकों हैं उनके लिए भारी पड़ सकते हैं अगर अक्लमंदी से इस मामले को सुलझाया ना जा गया तो सबसे बड़ी बात है कि दोनों पक्षों की तरफ से जांच बिठाई या नहीं बिठाई गई, लेकिन ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात मैं ज़रूर जानता हूँ कि आज सफाई सेवक जो यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे सामने विनोद बिट्टा जी हैं, और वो ये नहीं चाहते कि निगम को वो अपनी माँ मानते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसे गलत विचारों से बट्टा लगाए। तो इस बारे में विनोद बिट्टा जी ने एक रणनीति बनाई है और अपने जो सफाई सेवक यूनियन के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने विचार विमर्श किया है। और क्या विचार विमर्श किया, क्या नतीजे हैं, तो ये जानते हैं। 72 घंटे को बीत कर 72 घंटे और बीत चले हैं, तो कुल मिला के हम आपको बताएं कि 72 बीत गया, 72 वादों में बीता। तो 72 की कहानी तो हम सुनेंगे विनोद बिट्टा जी की जुबानी। सर, आज जो आपने मीटिंग की है, मीटिंग में क्या तय किया है? ਅੱਜ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5-7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਐਕਸੀਅਨ ਦਾ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬਿੱਟਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਐਂਟਕ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੰਗੀ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 31 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ 31 ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੱਪਖਾਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ, ਸਿਹਰੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੜਾਈ ਆ ਵੀ ਐਕਸੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਐਕਸੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਖਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੱਖਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਈ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 72 ਘੰਟੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਬਣਾਤੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਗੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧੂ ਜੀ ਐਕਸੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਘੁਨਾਥ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਆ ਐਸੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੜਕਿਆ ਪਿਆ ਗਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਭੜਕਿਆ ਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ? ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੋਤਲ ਫੜੀ ਦੀ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣ। ਜੋ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬੋਲੇ ਇਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣ। शहर में जरूर ਅਸੀਂ खराब करना। मेरी तो बेटा जी एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, सियासत तो नहीं कहीं आपकी, राजनीति नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि अब शब्द कोई भी अगर आला अधिकारी हो और वो ऐसे आप शब्द उसको मालूम है कि इस शब्द को कहे जाने से सीधी जेल है, तो क्या वो कहेगा? क्या इसे ये जो दफ़ा की पहले भी अवहेलना होती रही है, इस दफ़ा की आड़ में पर्चे झूठे होते रहे, तो क्या जांच कमेटी, क्योंकि उनके पास कोई गवाह नहीं है, उनके पास एक गवाह है, वो जो कहता है कि वो लाइव भारत से उसने बात किया, मैंने उनसे बात की, गवाह कौन है? तो उन्होंने कहा कि एक बंदा है जो दरवाजे पर खड़ा है और वो मेरा गवाह है, उसके सामने कहें। और वो कहता है कि मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, पर इनके आपस में गाली गलौज हो रहा था। तो अब जो ये अब शब्द है, जो ये शब्द है, ये पहली बात जांच का विषय कहे या नहीं कहे, और इसके लिए जब 3 मेंबर कमेटी बिठा दी गई है तो उसका जो रिज़ल्ट कब तक आएगा उसका इंतज़ार तब तक तो आप करें। बिल्कुल करेंगे।
बिल्कुल करेंगे। ਜਿਹੜਾ आपने सवाल पैदा किया, कोई भी शराबी बंदा ਅੱਜ तक ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੜਕੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੰਡੀ ਨਾ ਵੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। नहीं तो शराबी था तो वो ड्यूटी टाइम क्या कर रहे हैं? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਸਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਆ ਸਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੂੜਿਆ ਕੁੱਤਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਪੀਣ ਦੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਜੋ वो कहता मुड़ के मेरे को जब अंदर साथ के अच्छा, एक खबर है उसको हटा भी दिया गया, विजय कुमार को हटा दिया गया है वहाँ से। इससे नहीं हमने को मतलब लगा हटा दिया, जो एक्शन है उसकी ड्यूटी बनती है उधर, असी हटाने के हक च नहीं है। सर बेटा जी, जो ये जांच कमेटी बिठाई गई है, इनके डिसीजन का आपको इंतजार रहेगा कि आखिर यह क्या कहते हैं? अगर आपको नहीं आपके पक्ष में या कुछ आप हमारे पक्ष में नहीं आएगा, जे नहीं पक्ष फैसला करेगा तो असी सफाई मजदूर यूनियन जी अपने समाज के नाल खड़ी होएगी, हड़ताल करनी पेगी, हड़ताल करांगे। तो सर असी पहला मैंने एक जो जांच रिपोर्ट कब तक आएगी? जांच वो 1 महीने का उनका टाइम दिता, 30 दिन का। तो जो 30 दिन मंजूर है? जो मैंने सवाल आपसे पूछा है, जितना मर्जी शराबी हो, जिस तरह उनको कुछ कहिए ना, वो गाली निकालेगा मेरे से, बताओ। चलिए, ये तो शराबी जाने और वो हालात जाने, फिर तुम ऐसे कैसे कहते अफसर कह नहीं कह सकता? क्या चीज जो उसने शब्द बोले हैं, कोई अफसर नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? कई अफसर ऑडियल बोल देते हैं। मैं बताऊं, मैं ये कह रहा हूं सर आपसे, अफसर की बात नहीं कर रहा हूं, जो कानून को जानता है, जो सरकारी लोग, सरकारी अधिकारी है, अगर उसको मालूम है मैं एक ये शब्द बोलूंगा तो मुझे जेल जाना है, मेरी नौकरी जाएगी, ठीक है, तो क्या वो हो सकता है कि उसको देखिए रोब और अपना जो भी अपना व्यवहार स्वभाव वो अलग बात है, ठीक है ना, स्वभाव की अलग बात है। लेकिन कभी कभी इतना वो बददिमागी होगा, फिर हम बददिमागी कहेंगे। अगर उसने कहा होगा तो बददिमाग है, मैं तो फिर यही कहूंगा। मैं नहीं बोलता वो उसने कहा है, यस, मैं नहीं बोलता, मैं तो वो उसकी बात करता हूँ जो लड़के की, जो उसने बोला है। ओके, तो ये जांच 30 दिन के लिए जो है वो आपको मंजूर है? बिल्कुल मंजूर। मैं तो यही कह रहा हूँ, अब 30 दिन निगम और निगम के कर्मचारी एक्सीडेंट सब मिल बांट के वैसे ही काम करेंगे जैसे करते रहे। बिल्कुल करते रहे, हम उनको क्या तरह। अब 30 दिन का इंतजार रहेगा? बिल्कुल रहेगा। चलिए, तो ये बड़ी खबर लाइव भारत पर रहे, आपको रहेगा अब 30 दिन का इंतजार। 30 दिन की मोहलत मांगी है और निगम के यहाँ के अधिकारियों ने, और जांच होगी 30 दिन के बाद। जांच में फैसला जो भी आएगा, एक ना अगर निष्पक्ष फैसला हुआ तो ठीक है, वरना फिर वही हालात हो गए जो इन्होंने पहले कहा था। 72 घंटे बीत चुके हैं। 72 घंटे के बाद ये रणनीति जो लाइव भारत ने लाइव आपको दिखाया, और हम आपको सभी से, आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि कानून को माने, कानून को जाने, भाईचारा बनाए रखें। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु रामदास की बसाई नगरी श्री अमृतसर साहिब में अगर बात कहीं भी हो, किसी भी बात हो, क्योंकि हम ऐसे, हमें भगवान ने ऐसा एक दर्जा हमें दिया है जो सफाई करते हैं, उन रास्ते की सफाई करते हैं जहाँ श्री हरमंदिर साहब लोग आते हैं, उस रास्ते की हम सफाई करते हैं। जो शहीदों को नमन करने के लिए वाघा बॉर्डर पे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ी बात है कि अमृतसर गुरु रामदास की बसाई नगरी में अगर सफाई सेवकों का निगम के अधिकारी और यहाँ के मेयर समाधान नहीं कर पाते हैं, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात कि सबसे बड़ी सेना जो होती है वो हर राज्य की सबसे सफाई सेवकों की होती है। क्योंकि सफाई अगर नहीं होगी तो आपके रास्ते पथरीले होंगे और रास्तों में कांटे भी होंगे। लेकिन सफाई सेवकों का ये जो गुरु रामदास की बसाई नगरी में जो सेवा है, कम से कम उस सेवा का, अगर आप बदजुबान है तो कम से कम सोचें, अगर आपने ऐसे अपशब्द कहे हैं या अगर कोई ऐसी साजिश है, इसका भी होगा पर्दाफाश। मोहलत मांगी है 30 दिनों तक। तो ये थे विनोद बिट्टा जी, जिसमें लाइव भारत के साथ की स्पेशल बातचीत। अब देखते रहें लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।